Hi friends, today we will read the new unit or the last unit of our syllabus and the first poem of this unit 4.1, The World is Mine. First of all, we will see some warming up or chit chat questions. Then we will go ahead through the poem. There are some questions and activities in chit chat. Number 1, I am reading here. Form groups and discuss the following turn by turn. We have to form groups and we have to discuss some given topic or given sentences. A. What do you often complain to your parents, elders about? Any time, anyhow, any on any occasion or on any time you are complaining to your parents or elders about? Yeah, somehow, somewhere, or sometime we will complain to our parents, to our elders about our different problems. Whatever we have not gained, whatever we have not get from them, we will complain that. And of our different problems also, we will complain with them. Like we are complaining about our younger brother or sister, we are complaining about our school problems, we will complaining about different things. So this is the point. Now B, name some of the things you have in your possession. The things that you have in your possession, ऐसी चीज़ें जो आपकी जो है मिल्कियत के तौर पर आप उसको रखते हैं अपने घर में, ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी? आपकी साइकिल हो सकती है, आपकी कोई बुक्स हो सकती हैं, स्टोरी बुक्स हो सकती है, आपकी पेन हो सकती है, जो आप किसी और को जो है उसके साथ बांटना ज़रूरी नहीं समझते या फिर आप उसको बांटना नहीं चाहते। या आपकी कोई खेल की चीज़ हो सकती है, जैसे क्रिकेट बैट हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया। तो देर आर सो मेनी थिंग्स in your age that you will be possessed and you will never share with anyone, especially with your brother or sister. Yes. C, name one thing that at present you are craving to possess most of all. ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चाहिए और आपके पास अभी वो नहीं है, आप उसको पजेस करना चाहते हैं, आप उसको मिल्कियत बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने वालिद की, आवर फादर्स बाइक, आवर फादर्स bicycle, our fathers, anything that you couldn't have allowed to do that, but you want it now in this age, you want it, you want to be in your possession. So these are the some things you can craving to possess. Number D, read the translated Arabic proverb given below. There is a one Arabic proverb translated in English. We have to read it and discuss what it mean to convey, और हमें देखना है कि इसके क्या मानी है, क्या मतलब है. आई एम रीडिंग दैट कोटेशन और दैट प्रोवर्ब. आई कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज़. आई कंप्लेन दैट आई हैव नो शूज़ until I met a man who had no feet. Until I met a man who had no feet. तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. मैं बताता हूँ आपको कि मैंने अल्लाह ताला से, मैंने खुदा से हाथ उठाकर ये शिकायत की, ये कंप्लेन की कि मेरे पास जो है ख़रीदने के लिए, जूते ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर मैं इतना गरीब हूँ कि मैं जूते भी नहीं पहन सकता. तो फ़ौरन मेरी नज़र जो अल्लाह ताला ने, जब मैं दुआ मांग रहा था उसी वक्त मेरी नज़र जो है एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके पैर ही नहीं थे. तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है और मैं उसकी छोटी सी बात के लिए जो उससे क्या कर रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ कि मैं जूते नहीं ख़रीद सकता, मैं जो है बहुत गरीब हूँ. और अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा नज़ारा दिखा दिया कि एक ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जिसके जो है पैर ही नहीं थे, जूते तो बहुत दूर की बात है. तो यहाँ पर एक बहुत सबक आमोज़ ये जो है प्रोवर्ब आपको बताने की कोशिश की गई है. मतलब हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स वॉट एवर आवर अल्लाह और द गॉड हैज़ गिवन टू अस. This is the first activity we have solved. Number 2, read the poem below and fill in the gaps, choosing appropriate words to make it meaningful. Also suggest a title
of your own. There are some words in the bracket. I am reading those words. First is hours, fall, flowers, atoll, birthday, years, tears, shadows. Now we have to write the proper or the perfect word in each and every blank. For example, count your garden by the flowers. Never by the leaves that fall. Count your days by golden hours. Don't remember clouds at all. Count your nights by stars, not years. Count your life with smiles, not tears. And with joy on every fall or every shadow, count your age by friends, not by birthday. तो इस तरह से इसको जो है कंप्लीट करना था. Fill in the table on your own. We have to fill the table. There is a table or a column. There are two columns. What make me extremely happy? And the other column is what makes me extremely sad. कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा खुश करती है? Whenever we get some surprise gift, we will be happy. Whenever we listen the bad news, we will become sad. So in this way you have to write other 3 or 4 examples. I hope you will write it. Number 3 is there. Make the world a happy place by changing negative things into positive ones. Sad world, happy world. In the sad world means hatred, नफ़रत करना, injustice, नाइंसाफ़ी, poverty, गुर्बत, intolerance, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर, selfishness, खुदगर्जी, fear, डर, खौफ, jealousy, हसद, जलन, enmity, दुश्मनी, differences, इख्तलाफात, unrest, बिल्कुल अशांति या गैर सुकून, डर्ट, गंदगी, सौरो, दुख, दर्द. और उसी के बरक्स यहाँ पर हैप्पी वर्ल्ड में क्या हम ले सकते हैं? यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जस्टिस, यूनिटी, है ना. तो नंबर 1 पे हेट्रेड की बजाय लिख सकते हैं लव. यहाँ पर पॉवर्टी है, यहाँ पे लिखते हैं रिच. नंबर 4 में इंटॉलरेंस है तो टॉलरेंस. सेल्फिशनेस, अनसेल्फिशनेस. 6 नंबर फियर है, फियर के बरक्स क्या लिखेंगे वहाँ पर? वेरी प्लीजेंट. नंबर 7 में क्या है? एनिमिटी, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंडली. डिफरेंसेस, यूनिटी. अनरेस्ट, रेस्ट और पीस. dirt, cleanliness, sorrow, happiness. So in this way you can write sad world and how you will make it to happy world. Now we are reading the poem The World is Mine. ये दुनिया मेरी है. The world is mine. This is the title of the poem. Now first I am reading the poem. Please look at in your screens and listen carefully. Today on a bus I saw a lovely girl with silken hair. I envy her, she seemed so gay, and I wish I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aside, down the aisle. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 legs, the world is mine. I have 2 legs, the world is mine. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him, he seemed so calm. And if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 eyes, the world is mine. I have 2 eyes, the world is mine. Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment. Then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine.
I have 2 ears, the world is mine. I have 2 ears, the world is mine. With legs to take me where I will go. With eyes to see the sunset's glow. With legs to take me where I shall go. With eyes to see the sunset's glow. With ears to hear what I would know. O God, forgive me when I whine. O God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine. I am blessed indeed, the world is mine. I am blessed indeed, the world is mine. So, in this way, Joy Lovelett Crawford has written this poem. In this poem, he just be thankful to the God. अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। और किस तरह से किया जा रहा है, देखो यहाँ पर बहुत ही सबक आमोज़ और बहुत ही बेहतरीन एक यहाँ पर पैगाम मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये दुनिया मेरी है। टुडे ऑन अ बस, आज मैं जब बस में सवार हुआ, आई सॉ अ लवली गर्ल, मैंने बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा, विद अ सिल्कन हेयर, जिसके रेशमी बाल थे लंबे लंबे। आई एनवाई हर, मुझे उससे जलन हुई। शी सीम सो गे, वो बहुत खुश दिख रही थी। एंड आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, और उस वक्त मेरे दिल में ख़्याल आया कि काश मैं भी इसी तरह जो है खूबसूरत और गोरी गोरी होती। फेयर मतलब बहुत ही गोरा रंग। व्हेन सडनली शी रोज टू लीव, और जैसे ही वो जो है उतरने के लिए बस से उठी, आई सॉ हर हॉबल डाउन द एजल, मैंने सीट के बीच जो है उसको हॉबल करते हुए देखा। हॉबल मतलब लंगड़ाते हुए। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, फिर मुझे एहसास हुआ कि खुदा ये मैंने क्या गलती कर दी। मैंने तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखा, लेकिन वो जब पैर से अपाहिज है तो मुझे ये दिखाई ना दिया। इसलिए खुदा मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तेरे सामने जो है शिकायत की। वाइन मतलब शिकायत करना या रोना। आई हैव 2 लेग्स, तूने तो मुझे जो भले ही रंग नहीं दिया हो अच्छा, लेकिन मेरे पास 2 पैर हैं अच्छे से चलने के लिए। द वर्ल्ड इज़ माइन, इसलिए ये दुनिया मेरी है। फिर आगे चलकर, एंड देन आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स, मैं कुछ मिठाइयाँ लेने के लिए सड़क पर रुकी। द लैड हु सोल्ड देम हैड सच चार्म, और जो बच्चा, जो लड़का था, जो यंग नौजवान बच्चा था, वो बहुत ही जो है खूबसूरत था दिखने में। आई टॉक विथ हिम, मैंने उससे बात की। ही सीम सो काम, वो बहुत ही आराम से सुकून से मुझसे बात कर रहा था। एंड इफ़ आई वर लेट, और अगर मैं लेट हो गई, कहीं मुझे पहुंचना था, इट वुड डू नो हार्म, मैं उससे बात कर रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था उससे बात करते हुए। और अगर मैं लेट भी हो गई, देर भी हो गई मुझे, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं था। इट वुड नो हार्म। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, और जैसे ही मैं जो है उससे बात करके निकल रही थी वहाँ से, उसने मुझसे कहा, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पोएट से कहा उसने कि आप बहुत ही रहमदिल हो। काइंड मतलब रहमदिल। इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू, मुझे आप जैसे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। फोक्स यानी लोग। यू सी आई एम ब्लाइंड, मुझसे कोई बात नहीं करता क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, फिर वो यहाँ पर कह रही है खुदा से, पोएटिस, कि मैं खुदा तेरा बहुत बहुत जो है शुक्र अदा करती हूँ, तो उससे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने शिकायत की कि ये लड़का कितना खूबसूरत है। आई हैव 2 आइज़, कि तूने मुझे 2 आँखें भी दी। द वर्ल्ड इज़ माइन, इसलिए ये दुनिया मेरी है। लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, उसके बाद मैं जब गली से गुजर रही थी, आई सॉ अ चाइल्ड विथ आइज़ ऑफ ब्लू, मैंने बहुत ही नीली आँखों वाला एकदम जो है नीली आँखों वाला एक लड़का देखा, एक बच्चा देखा। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, वो खड़े होकर दूर जो है दूसरे बच्चों का खेल देख रहा था। इट सीम ही न्यू नॉट वॉट टू डू, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको खेल के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए वो खड़ा हुआ है दूर। आई स्टॉप अ मोमेंट, मैं उसी लम्हा वहाँ रुकी। देन आई सेड, फिर मैंने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर, ए मेरे बच्चे तुम उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। ही लुक्ड अहेड विदाउट अ वर्ड, वो आगे देखता रहा बिना कुछ कहे। एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर, और मुझे उस वक्त पता चला कि वो बच्चा सुन नहीं सकता था, उसके कान में जो है प्रॉब्लम था, मसला था, और वो सुनने में उसको तकलीफ़ थी, इसलिए वो सुन नहीं सकता था। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, ए मेरे खुदा, मैंने उसको देखते ही जो उससे अट्रैक्ट हो गई और मैंने तुझसे शिकायत करने लग गई, इसलिए खुदा मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। आई हैव 2 ईयर्स, कि तूने मुझे 2 कान भी दिए, इतनी बड़ी नेमत से तूने नवाजा। द वर्ल्ड इज़ माइन, इसलिए दुनिया मेरी है, इस दुनिया को तूने मेरा बना दिया। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई शल गो,
मेरे पैर हैं मेरे पास, जिससे मैं दुनिया में कहीं पर भी आ जा सकती हूँ। सॉरी। विथ आइज़ टू सी द सनसेट्स ग्लो, और मेरे पास आँखें हैं जो मैं हर एक नज़ारे को, कुदरत के, सूरज के उभरने को, सूरज के डूबने को, हर एक चीज़ को जो है आसानी से देख सकती हूँ। विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, जो मुझे जानना है, जो मुझे बात करना है, या जो मैं सुनना चाहती हूँ मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 कान हैं। ओ गॉड फॉरगिव मी, ऐ खुदा मुझे माफ़ कर। व्हेन आई व्हाइन, जब मैंने तुझसे शिकायत की, तेरे सामने गिड़गिड़ाया, रोया। आई एम ब्लेस्ड इंडीड, मैं तो बहुत ही नेमतों से तूने मुझे नवाजा है। बिल्कुल तेरी नेमतों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ या करती हूँ। द वर्ल्ड इज़ माइन, कि दुनिया तूने ये मेरे लिए बनाई है। तो इस तरह से इस पोएम में ये सिखाया गया है कि हमेशा हर हाल में हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला का, गॉड का जो है शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला का अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे तो जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है वो भी हमसे जो है वो वापस ले सकता है, वो हमसे नाराज़ हो सकता है। इसलिए हर हाल में जैसे हैं वैसे जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। हर हाल में शुक्र अदा करना जो है सीखो। और शुक्र अगर अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और नेमतों से आपको नवाजेगा और वो आपसे हमेशा खुश रहेगा। उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। 4.1 द वर्ल्ड इज़ माइन।